how to generate 1,000 leads in 30 days on Instagram. Is it sounds easy for you, or is it sounds so tough for you? The statement itself, how to generate 1,000 leads in 30 days, is it sounds easy for you, or is it so difficult? Is it so difficult to generate 1,000 leads on Instagram, or is it so easy? Aisha said tough. What about others? Tough. Daljit Kaur. Yes. What about others? Okay. Tough. Tanisha, Muskan. Yes. Agar hame, it's easy if your reels got wired, but tough when it doesn't. Okay, Ashi. Okay. Jeetan says tough. Ronit says tough. Vishal says tough. Okay. Do not unmute yourself, guys, please. Okay. So, yes, it is tough if you do not know the right strategies, the right funnels to generate leads, but it is easy for the people because कितने सारे online business हैं who are already doing it. उनके लिए 1,000 leads is a small number, 1,000 leads is a small number for so many businesses and brands out there. Type Y if you agree. Type Y if you agree with this. Yes. उन लोगों को सही स्ट्रैटेजीज, सही गाइडेंस, सही उन्हें पता है कि कैसे उन्हें अपनी लीड्स को अट्रैक्ट करना है, उन्हें पता होता है. ओके, टेल मी वन थिंग, व्हाई डू यू वांट टू जनरेट लीड्स ऑन इंस्टाग्राम? व्हाई डू यू वांट टू जनरेट लीड्स? व्हाट इज योर रीजन टू जनरेट लीड्स? Okay, for sale, to grow business, for services. Okay, more answers. For sale, brand awareness, growing business. So ultimately, if I conclude all the answers, if I say to you one thing, कि इन सारे आंसर्स को मिला के जो एक चीज आ रही है वो क्या है, कि अल्टीमेटली हमें हमारा सोशल मीडिया पे अपना ब्रांड ग्रो करना है, अपने ब्रांड को हजारों लाखों लोगों तक पहुंचाना है. हमारी जो सर्विसेज है, हमारा जो प्रोडक्ट है, हमारी जो चीज है, हमारा जो मेहनत है, क्योंकि हमें पता है, क्योंकि हमें पता है सोशल मीडिया इज द वे, जिसके बारे में हम आगे बात करेंगे. ओके, पर्सनल ब्रांडिंग. यस. सो अल्टीमेटली द गोल ये नहीं हो गया कि हमें अल्टीमेटली सेल से फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव करना है. टाइप वाई इन द चैट बॉक्स. अल्टीमेटली हमारा गोल ये नहीं हो गया कि हाँ हमें इस चीज से फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव करना है, अपने ऑनलाइन बिजनेस को बढ़ा के हमें अपनी एक पहचान डेवलप करनी है, जैसे बहुत सारे लोग कर भी रहे हैं, जैसे बहुत सारे बिजनेसेस आज बहुत इजीली कर भी पा रहे हैं, स्पेशली कोरोना वायरस के बाद से. यस. सो लेट्स गो अहेड एंड स्टार्ट दिस वेबिनार. ओके, वेलकम टू ऑल द डेडिकेटेड लर्नर्स हियर. हो सकता है आप लोगों को आज कोई और काम था, कोई भी और स्केड्यूल था आपका प्लान, बट यू ऑल आर हियर. इट totally determines that you all are dedicated towards learning new things, towards your desire of achieving that financial freedom, towards your desire of growing that business, growing that personal brand, growing that online brand as well. So welcome to all the dedicated learners who are here. So today we are going to learn about a lot of things about social media, Instagram, understanding our niche, our content strategy, कैसे बनाते हैं, mistakes जो हमें नहीं करने चाहिए, स्टेप बाय स्टेप हमें कैसे, ऐसे कौन कौन से स्टेप्स हैं जो लेने चाहिए और जो नहीं भी लेने चाहिए while monetizing our followers on Instagram, while generating leads on Instagram. But there is of course a bonus for you. If you will stay till the end, you will get a free PDF handbook of optimize your Instagram. Next, let's go ahead and understand, but before we deep dive into the most valuable lesson, I would like to take a moment to tell you who am I, why you should learn about Instagram from me. So let's do this. My name is Himanshi. I help coaches, freelancers, and aspiring online business owners and teams to turn their expertise into a profitable online brand by right strategies,
systems, tools, funnels, and etc. to build that financial freedom that we are desiring. That's what we are here for. So why am I the right person to teach you about Instagram? Is, of course, I have 3+ year of experience as a digital marketer. I have consulted so many people one-on-one, lead 40 plus people of team as a digital marketing head, created a digital course on Instagram marketing, digital creator, and invited as a guest speaker in colleges and different podcast as well. So my vision is always to educate so many people, like 1 million plus founders, freelancers, and service product providers like us, like you, to use social media wisely and grow their brand. Because बहुत सारी प्रॉब्लम आती है, अगर हम कोई ऑफलाइन बिजनेस भी स्टार्ट करने जाते हैं ना, तो भी बहुत सारी प्रॉब्लम आती है. अब ये तो हो गया हमारा पूरा का पूरा ऑनलाइन बिजनेस का सेटअप, जिसके बारे में ऑफकोर्स अभी हम आगे बात करेंगे. सो फर्स्ट ऑफ ऑल, टर्न ऑफ ऑल द डिस्ट्रैक्शन इफ यू आर हैविंग अराउंड. कोई भी म्यूजिक चल रहा है, कोई भी कुछ भी हो रहा है, आसपास शोर हो रहा है, सो क्लोज योर गेट्स एंड be focused for this 1 hour right now. Turn off all the distraction, because this is going to be the most valuable lesson for all of you. So now tell me one thing. Are you the one seeking to generate income using social media platforms? Type Y in the chat box if your answer is yes. Type Y in the chat box if your answer is yes. Yes. Okay, but I have one more question to ask you. Are you the one tired of trying and generating leads on social media but still getting no income? Type Y in the chat box if you are the one that is tired and frustrating, of trying and generating leads, and हम अगर फ्री में भी कुछ सर्व करते हैं तो भी लोग नहीं आ पाते, हम लोग को डीएम करते हैं, लोग तब भी नहीं आ पाते, हम कितना ट्राई करते हैं, कंटेंट डालते हैं, रील्स वायरल नहीं होती, कितनी सारी चीजें हम ट्राई करते हैं, बट स्टिल वी आर नॉट गेटिंग एनी काइंड ऑफ इनकम. Still we are on the same plate, still we are struggling, still we are hustlers. Yes, so many people of you are saying yes. So आज हम इस फ्रस्ट्रेशन को पूरी तरह से दूर करने वाले हैं. Like, be focused. Okay. Okay. So now हम एक छोटी सी, मैं आपसे एक एक्टिविटी और एक एग्जाम्पल के रूप में मैं आपसे एक एक्टिविटी पूछूंगी, एंड यू हैव टू आंसर टू दैट क्वेश्चन टू गेन क्लैरिटी. ओके, सो लेट्स गो इनटू दैट एग्जाम्पल. एग्जाम्पल है दो. फॉर एग्जाम्पल, आपने कोई एक लोकल मार्केट में, आसपास जो मार्केट्स होती हैं, हमारी लोकल मार्केट्स होती हैं, आपने फॉर एग्जाम्पल उसमें अपनी एक न्यू शॉप ओपन करी है, लाइक दिस, जैसे इस फोटो में रिप्रेजेंट किया गया है. एंड फॉर द 60 days आप प्रॉपर मार्केटिंग करते हैं, ट्रेडिशनल मार्केटिंग करते हैं, बैनर्स लगाते हैं बड़े बड़े, ठीक है, और जो भी पॉसिबल होता है आप वो करते हैं, ठीक है. बट उस मार्केट का जो ऑडियंस साइज है, वो कुछ वहां पे 10,000 लोग रहते हैं उस एरिया में, उस लोकेलिटी में, उस सिटी में, ठीक है. एट द सेम टाइम हम एक मार्केट, ऑनलाइन मार्केट ओपन करते हैं. फॉर एग्जाम्पल, हम एक ऑनलाइन शॉप ओपन करते हैं, ऑनलाइन हम कोई बिजनेस पेज स्टार्ट कर रहे हैं, या फिर हमें ऑनलाइन अपना कोई ब्रांड स्टार्ट कर रहे हैं. फॉर द नेक्स्ट 60 days आप उसको मार्केट कर रहे हो हर एक प्लेटफॉर्म पे, वेबसाइट से लेके हर एक जगह पे, ग्लोबली आप अपने प्रोडक्ट को मार्केट कर रहे हो, आप अपने राइट ऑडियंस को पिच कर रहे हो, जाके अपने प्रोडक्ट एंड सर्विसेज के बारे में बता रहे हो, अट्रैक्ट कर रहे हो क्लाइंट्स को विद द राइट स्ट्रैटेजीज. So now tell me one thing. A is for local market, B is for online market. After 60 days, whose brand has more chances to become successful? Type A or B. Okay, B. Okay, B. So many of you are saying B. क्यों आप लोगों ने B बोला? क्या इसका मतलब, क्यों आप लोगों को लगा कि बी ऑनलाइन मार्केट में अगर हम करेंगे तो हमें ज्यादा अच्छे रिजल्ट मिल सकते हैं? अगर हम ऑनलाइन मार्केट में करेंगे, मतलब किसके पास ज्यादा क्लाइंट्स होंगे आपको लगता है आफ्टर 60 days? एक की मार्केट है 10,000, एक की मार्केट मैंने आपको बताया वो ग्लोबली अपना सारा स्प्रेड कर रहा है, अपना वर्ड कर रहा है, अपना मार्केटिंग कर रहा है, अपना मोर ऑडियंस फर्स्ट ऑफ ऑल, ऑफ कोर्स. क्योंकि मैं एक बात बताती हूँ,
हमें सबको पता है आज के टाइम में, इन टुडेज जनरेशन, इन टुडेज डेट, एवरीवन इज ऑन सोशल मीडिया, एवरीवन। अगर आप एक टीनेजर से पूछेंगे, शी और ही इज ऑन सोशल मीडिया। अगर आप किसी ओल्ड एज से पूछेंगे, 70 to 80, दे आर ऑन सोशल मीडिया। अगर आप एक मिड एज ग्रुप से पूछेंगे, वेयर दे आर ऑन सोशल मीडिया। बट देयर इज लेस पॉसिबिलिटी कि हम उस गली से जा रहे होंगे जिस गली में इस ट्रेडिशनल मार्केटिंग किया होगा, इस लोकल मार्केट ने, इस लोकल शॉप ने वहां किया होगा। देयर आर वेरी लेस पॉसिबिलिटी कि हमने वो बैनर देखा भी होगा। बट अगर हम ऑनलाइन मार्केट में, तो हम तो पूरा दिन फोन पे ही रहते हैं, हम तो पूरा दिन स्क्रॉल करते रहते हैं, हम तो पूरा दिन में हजारों एड्स देखते हैं। कितना सारा हम देखते हैं कि अरे एक नया ब्रांड है, हमें ये दिखा, हमें ये अट्रैक्ट करा, हमें ये समझ आया, हमें ये समझ आया। राइट, राइट और रॉन्ग? ग्लोबल रीच, रीच बिकॉज हियर इज अ वाइड ऑडियंस है। और पॉइंट इज कि हर कोई आजकल सोशल मीडिया पे है, हर कोई सोशल मीडिया पे। हमें ही देख लो, हम दिन में कितनी देर सोशल मीडिया चलाते हैं। लाइक आई थिंक ऑन एवरेज एक पर्सन 4 घंटे दिन में सोशल मीडिया या अपना फोन यूज करता है। देर इज अ डेली का कैपेसिटी जो वो यूज करता है, बट देर इज नॉट अ पॉसिबिलिटी कि हम डेली मार्केट जा रहे हैं। देर इज अ वेरी लेस पॉसिबिलिटी। हो सकता है हम हफ्ते में एक बार जाते हैं, महीने में 2 बार बस। बट एक इंसान डेली 4 घंटे दिन में अपने फोन पे बिताता है, सोशल मीडिया पे स्पेंड करता है। राइट, सो ऑफ कोर्स द आंसर इज बी। अगर वो 60 डेज तक राइट स्ट्रैटेजीज, राइट ऑडियंस के साथ अपना प्रोडक्ट, अपनी सर्विसेज को सही तरीके से पिच करेगा, तो देयर आर हायर चांसेस कि ऑनलाइन ब्रांड जो है वो बहुत जल्दी सक्सेसफुल होगा। आपने देखे भी होंगे पिछले 2-3 साल में कितने सारे ऐसे ब्रांड्स हैं जो कितनी जल्दी टॉप पर आए, लाइक लास्ट 2-3 इयर्स में जो टॉप पे आ गए हैं। और कुछ ब्रांड्स ऐसे हैं जो सालों से मेहनत कर रहे थे, जो ट्रेडिशनल मार्केटिंग कर रहे थे, इतने टाइम से लगे हुए थे, बट वो एक स्टेज के बाद आके 10-15 साल बाद जाके कहीं अब उनका नाम हुआ है मार्केट में। ठीक है, सो दैट्स व्हाट हैपन, दैट इज द डिफरेंस बिटवीन ट्रेडिशनल मार्केटिंग एंड ऑफ कोर्स ऑनलाइन मार्केटिंग। दैट्स व्हाई दीज डेज, चलो मैं एक एग्जांपल देके आपको ये चीज और थोड़ा सा क्लैरिटी से समझाती हूँ। मैंने एक रिसेंट एक ब्रांड की स्टोरी पढ़ी थी, आई डोंट नो अगर आपने सुना है या नहीं। द ब्रांड नेम इज स्निच। उन्होंने क्या किया था कि उन्होंने अपना पहले ऑनलाइन बिजनेस, ऑनलाइन ब्रांड स्टार्ट किया था, क्लोथिंग ब्रांड का, मेंस क्लोथिंग ब्रांड। सो उन्होंने सबसे पहले ऑनलाइन स्टार्ट किया। ऑनलाइन जब उनका 2-3 साल ग्रो हो गया, उनका ब्रांड विजिबिलिटी बढ़ गया, उनका कस्टमर बेस बढ़ गया, उनका ब्रांड अवेयरनेस बढ़ गया, तब जाके उन्होंने ऑफलाइन स्टार्ट किया, वो भी अपना फर्स्ट शोरूम। अब जाके आफ्टर 4 to 5 years अब कहीं जाके उन्होंने अपना ऑफलाइन खोला। राइट, सो अगर हम बोलते हैं कि कोई बड़ा ब्रांड है, बहुत प्रोफेशनल है, उन्हें पता होता है कि क्या है कैसे है, सो ऑल दे नो इज कि हमारी ऑडियंस कहाँ पर है, हमें कहाँ पर जाना है अपनी ऑडियंस तक पहुंचने के लिए। दैट्स ऑल दे नो वेरी क्लियरली। और आज के टाइम में सोशल मीडिया एक ऐसी चीज आ गई है, अगर हम उसको ठीक से समझ लें, राइट स्ट्रैटेजीज अनलॉक कर लें, अपनी टारगेट ऑडियंस तक पहुंचने का रास्ता मिल जाए, अगर हमें सही तरीके से समझ आ जाए, तो आप बिलीव नहीं करेंगे विद इन 6 महीने में आप कहाँ पहुंच सकते हैं, आपका ब्रांड कहाँ पहुंच सकता है, आपकी विजिबिलिटी कहाँ पहुंच सकती है। यू हैव नो आइडिया अबाउट दैट। राइट, सो लेट्स गो अहेड एंड अंडरस्टैंड मोर। ठीक है, या करेक्ट आशी। ओके, नाउ अब हम समझते हैं अबाउट सोशल मीडिया। ठीक है, आई विल आस्क यू वन क्वेश्चन, वेट अ मोमेंट। हाँ, व्हाट इज द विच इज द मोस्ट यूज्ड सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ग्लोबली? चैट बॉक्स का यूज करके इसका आंसर दीजिए। विच इज द मोस्ट यूज्ड सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, आई एम आस्किंग ग्लोबली, पूरी दुनिया में, पूरी अर्थ पे सबसे ज्यादा यूज होने वाला सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म कौन सा है? Okay, there are so many people are saying Instagram. Daljit is saying YouTube. Okay, Facebook भी बहुत सब लोगों ने बोला, Twitter. Okay, YouTube. So the correct answer is Instagram and Facebook. Okay, okay. So the correct answer of this is that Facebook.
फेसबुक पूरा ग्लोबली इन द मार्केट में सबसे ज्यादा नंबर ऑफ यूजर्स एंड अकाउंट्स फेसबुक पे हैं। सबसे ज्यादा देर लोग फेसबुक को चलाते हैं। उसके बाद हमारा यूट्यूब बहुत ज्यादा ट्रेंडिंग रहता है बिकॉज ऑफ इट्स सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, क्विकली सॉल्यूशंस। व्हाट्सएप उसके बाद, एंड देन इंस्टाग्राम। These are the four major social media platforms that we can use to reach out globally हम अपने clients and audience तक reach out कर सकते हैं using all these platforms. So let's move ahead. Okay, which age group is most active on Instagram? अब हम थोड़ी देर Instagram की बात करेंगे बिकॉज हमें जो लीड जनरेशन सीखना है, हमें जो 1000 लीड्स जनरेट करनी है, वो हमें Instagram पे करनी है, राइट? तो इसके लिए हमें ये पता होना चाहिए कि क्या हमारी ऑडियंस इंस्टाग्राम पे है भी या नहीं, या हम ऐसे ही इंस्टाग्राम पे अपना पेज बनाए जा रहे हैं, बिजनेस पेज बना रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। So we need to understand which age group is most active on Instagram. Okay, so how to understand if Instagram is right for your business or not? So ऐसे आप समझोगे कि Instagram आपका बिजनेस के लिए है या नहीं, but let's understand कि कौन सा एज ग्रुप मोस्ट एक्टिव है on Instagram. 18 to 30, 18 to 25, 18 plus. Okay, so let me reveal the answer. Just give me a moment. Okay, so 18 to 24 has the highest number of age group active on Instagram. Okay, and second highest is, of course, you can see in the picture, that is 25 to 34 years age year group, age year old. 18 to 34 ग्रुप ऑफ ऑडियंस ऐसे हैं जो इंस्टाग्राम पे बहुत ज्यादा मेजरली एक्टिव हैं, जो दिन में इंस्टाग्राम एक बार, दो बार, तीन बार चलाते ही चलाते हैं। मैक्सिमम नंबर ऑफ यूजर नेम्स हैं इस एज ग्रुप के। सो इफ अंडरस्टैंड दिस, अगर आपकी ब्रांड, आपका प्रोडक्ट, आपका सर्विस, आपकी जो थिंग है वो इस एज ग्रुप को टारगेट करती है, 18 to 34 वाले एज ग्रुप को टारगेट करती है, then congratulations, of course Instagram is for you, for your brand. ओके, सबसे पहले हमें यही चीज समझनी होती है कहीं पे भी बिजनेस पेज और ये सब बनाने से पहले, कि क्या मेरे प्रोडक्ट और सर्विसेज के लिए इंस्टाग्राम इज द राइट प्लेटफॉर्म और नॉट। ठीक है, so if your audience are Gen Z 18 to 24 and millennials 25 to 34 age group, then star most active audience of Instagram, then Instagram is best for your product and services. ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और समझते हैं रोड मैप टू जनरेट 1000 लीड्स इन 30 days. लेट्स अंडरस्टैंड, अब हम वन बाय वन पूरा रोड मैप पे जाएंगे। ठीक है, समझेंगे कि 1000 लीड्स को 30 डेज में हम कैसे गेन कर सकते हैं। बट बिफोर I will start this roadmap, the whole roadmap, because it's going to be a lot of insightful and a lot of deep. So I want to know, what is the main problem do you guys face while generating leads? Type your answers in the chat box. What is your main problem? Why it is the main problem of generating leads on Instagram? Because मैं आजकल देखती हूँ people are using DM strategies a lot. Like लोगों को DM किया, पिच किया, लोग रिप्लाई भी नहीं करते उन DMs का। ठीक है, और बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती है। हमने बिजनेस पेज तो बना लिया बट हमें समझ नहीं आ रहा अब हम कैसे करें। तो हम क्या करते हैं, कभी कभी हम गिव अप कर देते हैं, कभी कभी हम उस चीज को गिव अप कर देते हैं। ठीक है, और भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स हमारे पास आती हैं कि कैसे करें, क्या करें, कौन सा प्रोडक्ट है। कभी कभी हमें समझ नहीं आता व्हाट काइंड ऑफ ऑफर वी शुड क्रिएट टू सेल ऑन इंस्टाग्राम। कभी कभी ऐसी प्रॉब्लम्स भी आ जाती है कि यार हम फ्री में भी सर्विस दे रहे हैं तब भी कोई नहीं ले रहा, हमारे पास तब भी 5 या 10 लीड से ज्यादा नहीं आती है। सो ऐसी प्रॉब्लम क्यों है और आपके पास ऐसी प्रॉब्लम क्या क्या आ रही हैं, प्लीज टेल एंड स्टक ऑन व्हाट टू पोस्ट, हाउ टू। यस, हम स्टक हो जाते हैं कि क्या पोस्ट करें, क्या हमारी ऑडियंस को अच्छा लगेगा, कैसे हम अपनी ऑडियंस को अट्रैक्ट करें। ठीक है, रील डज नॉट गो वायरल। इफ योर रील डज नॉट गो वायरल, इट इज नॉट डायरेक्टली रिलेटेड टू लीड जनरेशन। ठीक है, अगर आपकी रील नहीं वायरल हो रही है, देन देयर इज अ होप कि आप स्टिल लीड जनरेशन कर सकते हो।
ठीक है, फाइंडिंग टारगेट ऑडियंस, हमारी ऑडियंस कैसे है, हमें कैसे उन्हें टारगेट करना है, इसको समझने में भी बहुत प्रॉब्लम आती है। ठीक है, आई एम स्टिल सेइंग इट अगेन, रील्स आर नॉट गोइंग वेल, दैट रील्स आर नॉट डायरेक्टली रिलेटेड टू लीड जनरेशन। अगर आपकी रील्स, मैंने बहुत सारे ऐसे पेजेस देखे हैं जिनके सिर्फ 500 to 1000 फॉलोअर्स हैं, बट स्टिल दे हैव वेरी गुड ब्रांड अवेयरनेस, दे हैव वेरी गुड ऑनलाइन ब्रांड। देर आर बहुत सारे पेजेस हैं ऐसे। सो इफ यू आर थिंकिंग कि आपकी यार एक बार रील वायरल होगी तभी आपको लीड्स आएंगी, तो इट्स अ मिथ, इट्स अ मिथ, इट्स अ क्लियर क्लियर मिथ। ओके, गेट आउट ऑफ दिस मिथ कि आपकी रील्स वायरल होंगी तभी आप लीड जनरेट विदाउट रील वायरिंग के भी कर सकते हैं। अंडरस्टैंड दिस, आप अपना लीड जनरेशन विदाउट रील्स के वायरल हुए भी कर सकते हो। ठीक है, सो अब हम बात करते हैं रोड मैप की टू जनरेट 1000 लीड्स इन 30 डेज। 5 स्टेप्स टू जनरेट लीड्स विदाउट। सबसे पहले अब हम बात करेंगे कि हम क्या करते हैं, हम क्या ऐसी मिस्टेक्स हैं जो हम कर देते हैं जाने अनजाने में, जो हमें नहीं करनी चाहिए। दिस पेज इज ऑल अबाउट अ थिंग जो हमें नहीं करना चाहिए। ओके, सबसे पहली चीज है, हम क्या करते हैं, हमने अपना बिजनेस पेज बना दिया। ठीक है, हम ऑनलाइन चले गए, हमारा हमें समझ आया कि हमें ना, जैसे लोग कर रहे हैं, हमें भी ऑनलाइन अपना ब्रांड ऐसे बिल्ड करना है। तो हमने सबसे पहले क्या करा, हमने अपना एक बिजनेस पेज बना दिया ऑनलाइन, विच इज ऑफ कोर्स वेरी इजी। सेकेंड स्टेप हमने क्या किया, थोड़ा बहुत कंटेंट डालना स्टार्ट कर दिया, थोड़ी बहुत रील्स डालनी स्टार्ट कर दी, थोड़ा बहुत अपना ऑफर के बारे में बात करना स्टार्ट कर दिया, थोड़ी बहुत अपनी चीजें करना स्टार्ट कर दिया जो हमें लगता है कि ठीक है, जो हमें लगता है कि ठीक है, जो हमारे माइंड में आ रहा है कि हाँ चलो अब हम ऐसे करते हैं, तो हम वैसे कर देते हैं। फिर माइंड में आता है कि चलो अब हम ऐसे कर देते हैं, फिर हम वैसे करने लग जाते हैं। उसके बाद चलो ठीक है, हमने ऑफर लॉन्च कर दिया, हमने अपने जो फॉलोअर्स हैं उनको बता दिया कि हम ये सर्विस और प्रोडक्ट दे रहे हैं। ठीक है, फिर क्या होता है लास्ट में, भाई 2 से 5 लीड्स हमारे पास आती हैं, चाहे अब आप फ्री में दे रहे हो चाहे आप उसको पेड में दे रहे हो, स्टिल आपके पास क्या हो रहा है, 2 से 5 लोग आ रहे हैं। ठीक है, उसमें भी कोई कन्वर्ट होगा नहीं हो रहा, यू नो 2 लोग कन्वर्ट हो रहे हैं, एक हो रहा है, वो भी नहीं हो रहा। जब हम इतने कम लीड्स आएंगे तो ऑफ कोर्स कन्वर्जन रेट की तो क्या ही बात करेंगे फिर, ऑफ कोर्स, है ना। फिर लास्ट में क्या होता है, हम गिव अप करने लग जाते हैं, हमारे अंदर से बोलता है अरे यार दिस दिस थिंग इज नॉट फॉर मी, दिस इज नॉट फॉर मी, ये मेरे से होगा ही नहीं, मैं कैसे करूंगी, मेरा तो अभी स्टडीज भी चल रही है, जॉब भी चल रहा है, कुछ भी चल रहा है XYZ, मैं इसके साथ साथ ये चीज कैसे फॉलो करूंगी, मैं नहीं कर सकती। ये सब बाहर से बहुत इजी लगता है, बट एक्चुअल में अगर हमें सही चीज पता होगी, सही स्टेप्स पता होंगे, तो ये चीज एक्चुअल में भी उतनी ही इजी है और आपको गिव अप नहीं करना पड़ेगा। डू यू एवर फेल्ट कि यार मुझे तो गिव अप करना है, मुझे ये चीज अभी नहीं करनी है? डू यू एवर फेल्ट लाइक दिस, एवर एंड एवर? बिकॉज स्टार्टिंग में व्हेन आई स्टार्ट डूइंग ऑल ऑफ दीज थिंग्स, मेरे साथ भी बिकॉज पता है सेम प्रॉब्लम होती थी, लाइक बैक इन द माइंड। अगर मैं बात करूँ 3 से 4 साल पहले की बात अगर मैं करूँ, तो तब मेरे साथ भी होता है, मैं ऑफर लॉन्च कर रही हूँ, लीड्स आ रही है, कन्वर्ट नहीं हो रही, या फिर अच्छा नहीं हो रहा, कुछ लोगों को समझ नहीं आ रहा, वो लोग इंटरेस्टेड नहीं है, फ्री में भी कोई चीज दे रहे हैं तब भी लोग नहीं आ रहे। तो ये प्रॉब्लम होती है, ये प्रॉब्लम होती है बिकॉज हमें वो सही फनल, सही चीज नहीं पता होती है। समटाइम्स हमें लगता है कि मेरा नहीं मन कर रहा है ये सब करने का, मुझे गिव अप करना है, मुझे ये नहीं करना है, या मैं क्यों आ गई इस लाइन में, पता नहीं मैंने क्यों बिजनेस पेज स्टार्ट कर दिया, या खोल के, या फिर बिजनेस पेज को स्टार्ट करने के बाद उसको हम भूल ही जाते हैं कि हमने एक बिजनेस पेज बना भी रखा है। ठीक है, सो ऐसे भी प्रॉब्लम्स आती हैं, सो लेट्स ओवरकम। अब हम बात करेंगे कि हमें एक्चुअली में क्या करना चाहिए। ठीक है, एक्चुअली में अब हमें क्या करना चाहिए टू एक्चुअली जनरेट लीड्स एंड कन्वर्ट इट इनटू योर क्लाइंट टू अचीव दैट फाइनेंशियल फ्रीडम वी आर डिजायरिंग फॉर। ठीक है, नाउ 5 स्टेप्स फनल टू गेट क्लाइंट्स विदाउट ओवरवेलमिंग। व्हाट वी शुड डू, सबसे पहले फॉर एग्जाम्पल हमारा कोई भी इंस्टाग्राम का पेज है या कोई भी हम वेबसाइट है, कैसे भी हम अपना मार्केट में अपना प्रोडक्ट और सर्विसेज लॉन्च कर रहे हैं, तो सबसे पहली चीज जो हमें करनी होती है वो होता है लीड जनरेशन। सबसे पहला स्टेप होता है लीड जनरेशन। लीड जनरेशन के बाद हमारे पास आता है उस लीड को नर्चर करना। वो ऐसे ही कन्वर्ट नहीं हो जाएगा, ऐसे ही नहीं होगा कि उसने आपको ऑफर सुन लिया और वो मान गया। उसके बाद आता है आपके पास स्टेप
लीड नर्चरिंग, एंड देन उसके बाद कहीं जाके कन्वर्जन का थॉट बनता है और फिर वो जाके क्लाइंट बनता है। अब हम इन सारे स्टेप्स को डिटेल में टॉक करेंगे कि लीड जनरेशन कैसे होता है, नर्चरिंग क्या होता है, कन्वर्जन क्या होता है। ठीक है, ओके लेट्स गो अहेड। सो अंडरस्टैंड दिस, सबसे पहले तो ये एक चीज अपने माइंड में बिठा लो, रीचिंग आउट टू मोर पीपल इज इक्वल्स टू रीचिंग आउट टू मोर कन्वर्सेशन। वेरी सिंपल है, बहुत सिंपल है ये चीज समझना। जितने ज्यादा लोगों तक हमारा प्रोडक्ट, सर्विस, ब्रांड, बिजनेस पेज, वेबसाइट जो भी है, लैंडिंग पेज, जितने ज्यादा लोग देखेंगे, जितने ज्यादा लोग विजिट करेंगे, उतनी ही ज्यादा कन्वर्जन्स होने के चांसेस हैं। चलो मैं एक एग्जांपल से समझाती हूँ। अगर एक लोकल शॉप है, ठीक है, उसने अपना बैनर लगाया हुआ है कहीं पे मार्केटिंग पे, वो 100 लोगों ने देखा, या फिर आई विल से चलो 1000 लोगों ने देखा, 1000 लोगों ने देखा, तभी जाके तो 100 लोग आपकी शॉप पे विजिट करने के लिए आएंगे। और जब 100 लोग उसको विजिट करने के लिए आएंगे, तभी तो वी कैन प्रिडिक्ट कि हाँ 10 लोग अब जाके कहीं बाय कर सकते हैं। ठीक है, सो अल्टीमेटली रीचिंग आउट टू मोर पीपल इज इक्वल्स टू रीचिंग आउट टू मोर कन्वर्जन्स। अगर हमें लगता है कि हम वही 10-5 लोगों के बीच में रिवॉल्व होके अपने ब्रांड को वहीं पे फिक्स करके ग्रो कर सकते हैं अपना बिजनेस, सो वो बहुत बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा और हम उसी सर्कल में घूमते रहेंगे कि वही 10 लोग, वही सब चल रहा है। जब तक हम नहीं लोगों तक रीच करना नहीं सीखेंगे अपने पेज को, अपने ब्रांड को, तब तक हम उस लेवल पे ग्रो नहीं कर पाएंगे जिस लेवल पे हमने सोचा हुआ है, जिस लेवल पे हम विजन करते हैं। जैसे बहुत सारे लोग आज के टाइम में कर रहे हैं, जो चीज हम विजन करते हैं ना, वो ऑलरेडी कोई और कर रहा है। वी नो दैट। हमारे कॉम्पिटिटर्स होते हैं, हमारे और भी लोग हैं फील्ड में जो ऑलरेडी वो चीज कर रहे हैं जो हम विजन कर रहे हैं अभी इस टाइम यहाँ बैठ के। राइट, सो रीचिंग आउट टू मोर पीपल, उन्होंने भी बहुत सारे लोगों से बात करी होगी, उन्होंने भी बहुत लोगों को रीच करा होगा, उन्होंने भी जब जाके उन्हें कुछ कन्वर्जन्स मिली होंगी, तब जाके उनका ब्रांड धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप ग्रो होना स्टार्ट हुआ होगा। बट इन ऑनलाइन इट इज इजी टू ग्रो, इट इज इजी टू ग्रो if, as I said, if we know the right thing. So let's break this. 1000 leads in 30 days हमें जनरेट करनी है। 1000 लीड्स को अगर मैं 30 डेज में ब्रेक करती हूँ, अगर मैं 1000 लीड्स को 30 डेज में ब्रेक करती हूँ, सो अल्टीमेटली आपके पास बचेंगी 33 लीड्स पर डे। अल्टीमेटली आपको हर दिन 33 लीड्स को जनरेट करना है in order to get 1000 leads within 30 days. Is it clear? Type C in the chat box. Is this thing is clear? Yes. Okay. Anushka, okay. ठीक है. Okay. Tanisha said no. I am repeating this thing. Tanisha, listen. अगर हमें 30 डेज है हमारे पास, 1000, मैंने अभी क्या बोला था, हाउ टू जनरेट 1000 लीड्स इन 30 डेज। 30 डेज में 1000 लीड्स कैसे जनरेट करते हैं। ठीक है, अगर आपको 30 दिन में, लिसन इट, 30 दिन में 1000 लीड्स जनरेट करनी है, तो एक दिन में कितनी करोगे, एक दिन में कितनी लीड जनरेट होगी, विच इज आंसर है यहाँ पे 33। आपको पर डे 33 लीड्स जनरेट करनी पड़ेंगी in order to generate 1000 leads in a month. ठीक है, it's a simple math. Okay, is it clear Tanisha now? Okay, done. Let's move ahead. ठीक है, अब हम समझते हैं कि पर डे अब हम 33 लीड्स कैसे जनरेट करते हैं, विच इज इक्वली डिफिकल्ट। अगर हमें नहीं सही चीज पता होगी तो ये भी स्टेप हमारे लिए बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा कि हमें 30 डेज में, सॉरी पर डे में 33 लीड्स कैसे जनरेट करें। ठीक है, बिकॉज मैं बता चुकी हूँ, क्योंकि ऐसा बहुत बार होता है कि हम कोई भी चीज लॉन्च कर रहे हैं, कोई भी ऑफर लॉन्च कर रहे हैं, तो बहुत बार होता है कि 10 लीड्स भी नहीं आती कभी कभी। ठीक है, 10 लीड्स भी या फिर इतनी मुश्किल से आती है कि हमारा खून पसीना सब उसमें लग जाता है, एंड उसके बाद भी हम वहीं की वहीं रह जाते हैं। ठीक है, सो 33 लीड्स पर डे अब हमें डेवलप करना है। सबसे पहला स्टेप हमें क्या लेना है, सबसे पहला स्टेप, बिकम अ सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट।
ठीक है, अपने ही नीश का हीरो बनना है आपको। हर एक पर्टिकुलर नीश का सोशल मीडिया पे एक ना एक हीरो है। अल्टीमेटली हम बोलते हैं ना कि यार मुझे ना इसके जैसा बनना है, या फिर हमारे माइंड में होता है कि यार ही दिस इस इंसान का प्रोडक्ट और सर्विस मेरा कॉम्पिटिटर है। ठीक है, तो अल्टीमेटली आपको अपने ही नीश का, अपने ही आई विल से या नीश, अपने ही नीश का हीरो बनना है, अपने ही उस टॉपिक का, फील्ड का हीरो बनना है। बिकम अ सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट। एक पर्टिकुलर फील्ड में, आई डोंट वांट कि आप एक फील्ड से दूसरी फील्ड पे जंप 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 भी करते रहो, यार इसमें रिजल्ट नहीं आया ना, लेट्स मूव टू अदर, लेट्स मूव टू अदर। ये नहीं करना है, नहीं करना बिल्कुल भी। अनटिल अनलेस आपको लगता है कि आपकी ये फील्ड आपको समझ नहीं आ रही है, आपको और कुछ एक्सप्लोर करना है, देन देयर इज अ ऑप्शन कि आप दूसरी फील्ड में जाएं। अनटिल अनलेस आई वोंट सजेस्ट कि आप दूसरी फील्ड को पिक करें, जब तक आप एक, आई वांट कि आप जितना भी फोकस अपना माइंड लगा रहे हो वो एक पर्टिकुलर नीश पे होना चाहिए। आपने देखा होगा जितने भी बड़े बड़े ब्रांड्स होते हैं वो तो उनका एक पर्टिकुलर नीश होता है। कोई फैशन में एक्सपर्ट है, कोई ट्रेनिंग में एक्सपर्ट है, ठीक है, कोई फूड ब्लॉगिंग में एक्सपर्ट है, कोई ट्रैवलिंग में एक्सपर्ट है। सो हर एक चीज में कोई ना कोई एक्सपर्ट मार्केट में है, ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है। ऑलरेडी इतना टाइम हो गया सोशल मीडिया को रन होते हुए, ऑलरेडी इतने लीडर्स सॉरी एग्जिस्ट करते हैं। ठीक है, सो वी नीड टू डिसाइड दैट नीश, वी नीड टू डिसाइड दैट नीश टुडे। आज हमें वो चीज डिसाइड करनी है कि वो हमारा नीश क्या है जिसको हमें पिक करने वाली हूँ। आई एम नॉट गोइंग टू लीव दैट जब तक मैं इस पे वर्क नहीं कर लूं, जब तक मैं इस पे अपना 100 ना दे दूं। गिव अप करने से जो चीज एक होप होती है, जो आगे के स्टेप्स कुछ हो सकते हैं, वो जो विजन होता है वो सब एक बारी में खत्म हो जाता है। ठीक है, सो डू नॉट थिंक ऑफ दैट। अगर हम सही तरीके से चलेंगे तो अपनी मंजिल जरूर पहुंच जाएंगे। राइट, सो बिल्ड योर नीश इनसाइड आउट। अपने नीश को समझो, अपने नीश में और 10 लोगों को देखो, जाओ समझो व्हाट दे आर डूइंग, व्हाट यू कैन डू टू अल्टीमेटली ग्रो। ठीक है, और ऑफ कोर्स अगर आपको कोई प्रोडक्ट है ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है, या फिर आपकी कोई सर्विस ऑलरेडी एग्जिस्ट करती है, सो उस चीज को अपना नीश कैसे बनाएंगे आप लोग, उस चीज को मार्केट में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, दैट इज द थिंग यू नीड टू अंडरस्टैंड, दैट इज द थिंग यू नीड टू अंडरस्टैंड। सो बिकम योर सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट, डू नॉट लीव योर नीश इन द मिडल। बीच में नहीं छोड़ना है किसी भी चीज को, कोई भी पेज बना के बीच में नहीं छोड़ना है, कोई भी यू नो एक विजन लाके अपने माइंड में बीच में नहीं छोड़ना है, बिकॉज यू नेवर नो कब क्या हो जाए। ओके, सो वी नीड टू क्रिएट अ गुड बैलेंस बिटवीन व्हाट इज योर इंटरेस्ट एंड व्हाट डू पीपल नीड। रीड दिस लाइन अगेन, ये नीश के लिए है। हमें एक गुड बैलेंस बनाना होता है इन टू थिंग्स, कि आपका क्या इंटरेस्ट है, आपका किस फील्ड में इंटरेस्ट है, ट्रैवलिंग में, फैशन में, ट्रेनिंग में, कंसल्टिंग में, किस चीज में है। व्हाट इज योर इंटरेस्ट एंड व्हाट डू पीपल नीड, क्या उस चीज की लोगों को नीड है भी या नहीं है, क्या मार्केट में उस चीज की नीड ऑलरेडी है या नहीं है। अगर है तो क्या आपका प्रोडक्ट और सर्विस उस चीज की नीड को डिलीवर कर सकता है, मार्केट में रिप्रेजेंट कर सकता है या नहीं कर सकता। सो वी नीड टू क्रिएट अ गुड बैलेंस बिटवीन व्हाट इज योर इंटरेस्ट एंड व्हाट डू पीपल नीड। नीश इज इक्वल्स टू योर इंटरेस्ट प्लस ऑडियंस नीड। हमारा इंटरेस्ट क्या है, क्योंकि इंटरेस्ट होना बहुत जरूरी है। जब तक हम उस चीज को एक्सप्लोर नहीं करेंगे, हम उस नीश में डीप डाइव नहीं जाएंगे, हम उसमें नई नई चीजें नहीं सीखेंगे डेली डेली, क्योंकि बहुत जल्दी जल्दी फ्रिक्वेंटली चीजें चेंज हो रही है। अगर हम उस चीज में नया नया नहीं सीखेंगे तो हम कहीं पीछे रह जाएंगे, एक्सपर्ट नहीं बन पाएंगे अपनी फील्ड के। सो आपका इंटरेस्ट उस चीज में होना बहुत जरूरी है, और ऑडियंस की नीड होना उस चीज में बहुत जरूरी है। ये दो चीज होना बहुत इंपॉर्टेंट है while सिलेक्टिंग योर niche. Okay, now here second step, let's talk about second step. अब मैं यहाँ पे आप लोगों को सिर्फ ये थियोरटिकली नहीं बता रही हूँ कि यार ये कर लेना ये कर लेना, नो, आई एम गिविंग यू एक्चुअल रोड मैप जो आप एक्चुअली में इम्प्लीमेंट करोगे, इफ यू वांट दैट डिजायर, इफ यू हैव दैट डिजायर इन योर माइंड, राइट। सो सेकंड स्टेप इज start posting content for the next 30 days. Now if you are very serious about your thing, if you are very 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 dedicated, as I can see that you all are here and you are dedicated, so
फर्स्ट स्टेप अपना नीश क्लियर कर लीजिए, आज अभी इसी वक्त लिख लो कि मुझे इस नीश पे वर्क करना है मतलब करना है, मुझे 100 लोगों से सीखना पड़े मैं सीखूंगा, पर मुझे इस चीज पे वर्क करना है. Then start posting content for the next 30 days. Now we are going to start posting content for the next 30 days. अब हम 30 days के लिए अपना कंटेंट डालना स्टार्ट करेंगे. ओके, एक मिनट पहले हम ये वाली बात कर लेते हैं, फिर हम आपके क्वेश्चन का आंसर देंगे. स्टार्ट पोस्टिंग कंटेंट फॉर द नेक्स्ट 30 डेज. पोस्ट 15 to 20 रीड्स. हमें 15 से 20 अपना 30 डेज में, नेक्स्ट 30 डेज में लिख लो इसको कहीं पे चाहे, 15 से 20 रील्स को पोस्ट करेंगे, अलग अलग तरीके की, अलग अलग टाइप ऑफ कंटेंट. 5 to 6 तो कैराउजल्स डाल सकते हैं, 5 to 6 पिक्चर्स डाल सकते हैं विद गुड कैप्शंस. कैप्शंस आर बहुत इंपॉर्टेंट है. People do read captions actually, if you don't believe it, but people do read captions. Okay, so start posting content for the next 30 days. You need to create best free content for your audience, because that is the first interaction of your brand with your potential customer. Now listen to this, listen to this. आपको ऐसा नहीं लगना चाहिए कि यार मैंने तो सब कुछ फ्री में ही अपना कंटेंट में ही डाल दूंगी तो मैं एक्चुअली में क्या सिखाऊंगी, ये नहीं लगना चाहिए. इट्स आल्सो अ मिथ. हमें हमारा जो कंटेंट है, ऑनलाइन कंटेंट है, वो हमेशा बेस्ट बनाना है, because that is the first interaction your customer is going to have with your brand, with your page. That is the first interaction they are going to have. Okay, so you need to create best free content for your audience, because that is the first interaction of your brand with your potential customer. अब हम एक बात करते हैं कंटेंट स्ट्रैटेजी रूल की. कंटेंट स्ट्रैटेजी रूल क्या होता है? ओके, ठीक है, कंटेंट स्ट्रैटेजी रूल क्या होता है? ठीक है, इफ आई नीड टू ग्रो माय लिंक्डइन कनेक्शंस, हाउ डू आई पोस्ट, मैं बताती हूँ अभी. ठीक है, हम कंटेंट स्ट्रैटेजी की बात करें, वो लिंक्डइन में भी आप अप्लाई कर सकते हो. ठीक है, कंटेंट स्ट्रैटेजी रूल होता है 7-20-10 रूल. 7-20-10 रूल. 7-20-10 रूल ये रिप्रेजेंट करता है कि आपका जो कंटेंट है ऑनलाइन, आई एम टॉकिंग अबाउट होल कंटेंट, नॉट जस्ट अबाउट रील्स. I'm not talking about just carousels. I'm talking about a whole content which you are creating for your online presence. So 70% of that content should be valuable. 70% of that content should be valuable. 20% of that portion should be relatable. 20% होना चाहिए कि हाँ आपका कंटेंट शेयरेबल है, या फिर आप कुछ ऐसा बना रहे हो जो लोग किसी से शेयर कर सकते हैं. ठीक है, और 10% कहीं ना कहीं प्रमोशनल होना चाहिए. बट हम कभी कभी अपने पेज को उल्टा कर देते हैं, प्रमोशन ज्यादा कर देते हैं, वैल्यू माइनस में हो जाती है. रिलेटेबल कंटेंट जो किसी को समझ में ही नहीं आ पाता कि वो एक्चुअली में रिलेटेबल है भी या नहीं. ठीक है, सो वी नीड टू क्रिएट अ कंटेंट विच इज वैल्यूएबल, रिलेटेबल प्लस प्रमोशनल. वैल्यूएबल सबसे ज्यादा होना चाहिए, बिकॉज आई एम सेइंग इट अगेन, उस पेज को 1000, 10,000, 20,000, 1 लाख लोग आके देखेंगे. ठीक है, ओके, प्लीज म्यूट योरसेल्फ एवरीवन. somebody has unmute themselves. Yeah, okay, wait a moment. Next, या वैल्यूएबल हमारा 70% होना चाहिए, विच इज एजुकेशन होना चाहिए. उसमें मैं आपको एग्जांपल्स दे रही हूँ कि क्या क्या उसमें हो सकता है, आप क्या क्या उसमें डाल सकते हो. 70% वाले पार्ट में एजुकेशन डाल सकते हो, कोई एडवाइस डाल सकते हो, हाउ टू टिप्स डाल सकते हो, इंपॉर्टेंट अपडेट्स डाल सकते हो, इंडस्ट्री की कोई न्यूज डाल सकते हो, स्टोरी टेलिंग डाल सकते हो, कुछ आपने अपनी फील्ड में न्यू लर्न किया है वो डाल सकते हैं. ठीक है, कोई भी टिप्स ट्रिक्स कुछ भी हो गया, कोई हैक हो गया, वो सब चीजें आप डाल सकते हैं उस पर. फिर आ जाता है हमारे पास रिलेटेबल कंटेंट. इंटरटेनिंग हो सकता है वो, जैसे आजकल आते हैं ना जब हम रील स्क्रॉल करते हैं, शेयर विद योर शेयर विद योर पार्टनर इफ दिस इज हैपन, ऐसे करके. सो एंटरटेनिंग डाल सकते हैं, रिलेटेबल डाल सकते हैं, शेयरेबल होना चाहिए कहीं ना कहीं, पर फील्ड से रिलेटेड होना चाहिए, ऐसे नहीं कि कुछ भी डाल दिया. शेयरेबल होना चाहिए कंटेंट. इंस्पिरेशनल कोट्स डाल सकते हो, बिकॉज वो बहुत शेयर होते हैं. बिहाइंड द सीन्स डाल सकते हो, जिसमें आप अपना एक्चुअली में रिप्रेजेंट कर रहे हो अपने ब्रांड को.
ब्रांड को। सो रिलेटेबल कंटेंट होना चाहिए। लास्ट में आता है कहीं जाके प्रमोशनल, ठीक है, जहां पे डायरेक्टली हम अपने प्रोडक्ट और सर्विस की बात कर रहे हैं। हमने फॉर एग्जांपल एक हाईलाइट बना रखा है, एक अराउजल बना रखा है, बायो में लिंक डाल रखा है, स्टोरीज पे बात कर रहे हैं, हम अपने प्रमोशनल बातें भी करेंगे। ठीक है, इज दैट क्लियर? टाइप सी इन द चैट बॉक्स इफ इट इज क्लियर। फिर हम आगे बढ़ते हैं क्योंकि अभी हमें और भी बहुत कुछ सीखना है। ओके, सी आशी, हीना, आयशा, प्रीति, तनिषा, ओके, क्लियर। व्हाट इज अ कैराउजल? कैराउजल इंस्टाग्राम पे जब आप स्लाइड करके कोई पोस्ट देखते हैं, स्लाइड करके जब हम पोस्ट देखते हैं ना, उसको हम कैराउजल बोलते हैं इंस्टाग्राम पे। ओके, ओके अनुष्का? नहीं नहीं, नॉट 2 3 पोस्ट टुगेदर, जब, हाँ बोल सकते हैं, मतलब जब हम स्लाइड करके कोई भी पोस्ट देखते हैं ना, ऐसे स्लाइड कर रहे हैं फिर स्लाइड कर रहे हैं, 10 to 15 स्लाइड जब एकदम से आ जाती हैं एक ही पोस्ट में, एक ही पोस्ट में जब हम ऐसे स्लाइड करके पोस्ट को देखते हैं या कुछ रीड कर रहे होते हैं, सो दैट इज कैराउजल। ओके, थैंक्स, ओके, आई थिंक यू गॉट दिस। ठीक है, सो ओके, नेक्स्ट मूव अहेड। सो अभी भी ये कंटेंट स्ट्रैटेजी का पार्ट चल रहा है। सपोज कि एक एग्जांपल दे रही हूँ, मतलब इट्स अ रोड मैप मैं आपको दे रही हूँ कि हाउ टू आप कैसे कर सकते हैं। सपोज यू पोस्ट 7 कंटेंट पीसेस अ वीक। सपोज करते हैं कि आप 7 कंटेंट पीस डालते हैं इन अ 1 वीक, so that means you need to post around 4 to 5 valuable posts, which is 70%, 1 or 2 relatable posts, which is 20%, and 1 promotional post, which is 10%. That's how you should divide your content. It's a clear map. ठीक है, that's how big brands, big influencers do it. They do follow this. Okay, so as I have already taught you this, your free content on social media needs to be the best one. Do not hesitate to share your tips, your how-tos, your everything. Just go and share. Even if you are, an affiliate marketer or something like that. So it's really, really, really important for you to build your, page, your personal brand. It's so important for those people because that's how people influence from you. That's how people will get to know you personally and professionally as well. So your free content on social media needs to be the best one. Okay, because that's one thing people will watch. That's how your brand reach thousands and build visibility as well. अब हम आ जाते हैं थर्ड स्टेप पे। हमने दो चीजों की बात करी, ठीक है। अब हम आ जाते हैं तीसरे स्टेप पे कि अब हमें आगे क्या करना है। चलो अब हमें समझ आ गया, मुझे मेरा नीश ठीक करना है। सेकंड, मुझे मेरे कंटेंट पे वर्क करना है जिसकी वजह से विजिबिलिटी बिल्ड होगी। थर्ड स्टेप होना है प्रीमियम स्ट्रैटेजी। अब आप लोग सोच रहे होंगे व्हाट इज प्रीमियम स्ट्रैटेजी, अब ये क्या है? हमने इतनी सारी स्ट्रैटेजीज पढ़ ली है, व्हाट इज दिस? ठीक है, सो लेट मी हेल्प यू अंडरस्टैंड। प्रीमियम स्ट्रैटेजीज इज like to give something valuable for free to your audience and help them. Freemium strategy होता है to attract audience, अपने ऑफर में बुलाएं एंड उनको कुछ वैल्यूएबल सिखाएं। आप अपने कोचिंग के थ्रू हो गया, कोई आपका प्रोडक्ट है तो आप वो शो कर सकते हैं, कोई आपका सर्विस है तो वो आप उन लोगों को एक्सप्लेन कर सकते हैं। और आस्क फॉर फीडबैक, आस्क फॉर इट कि डू यू लाइक इट और नॉट, how was the service, how was the premium experience you have. So ultimately offering something for free, or you can offer something for low paid offer. Low paid offer क्या होता है? When you ask your audience to pay you a little less amount, like आपने कभी देखा हो तो 99, 299, 199, that is the low paid offer. That's how people attract, that's how people will start trusting to you. ठीक है, so to give something valuable for free to your audience and help them, ask for audience, it will help you build your portfolio as well. So this is a step where you can build awareness of your expertise. ये एक ऐसा स्टेप है जहां पे आप अपने एक्सपर्टीज की अवेयरनेस बिल्ड करना स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, अगर किसी दुकान में कोई प्रोडक्ट ही नहीं होगा तो वो बैनर पे क्या लगाएगा कि इस नाम के शॉप पे आ जाइए, क्या लेने आएगा वो?
ठीक है. सो द फर्स्ट स्टेप, मतलब थर्ड स्टेप हमारा to get a job is creating portfolios are difficult to get a no creating portfolios are not difficult. Of course is creating portfolio is difficult to get a job. नहीं, portfolio बनाना difficult नहीं है, but अगर आपके पास enough experience है, आपने enough work किया हुआ है पहले digital marketing field में, so it will be a super easy thing for you. It will be a super easy thing for you. ठीक है, क्योंकि आप फटाफट से अपना पोर्टफोलियो बिल्डअप कर लेंगे कि हाँ मैंने ये काम किया हुआ है, ऐसे ऐसे मैंने किया हुआ है, एंड यू विल अल्टीमेटली गेट अ जॉब. क्या? ओके, नेक्स्ट, टू गिव समथिंग वैल्यूएबल. मैं फ्रीमियम स्ट्रैटेजी के बारे में बता चुकी हूँ. नाउ हाउ टू क्रिएट योर फ्रीमियम. मैंने बोल दिया कि चलो फ्रीमियम बनाना है, बट कैसे बनाना है ये मैंने बोला ना, दिस इज अ रोड मैप आई एम गिविंग टू यू. सो हाउ टू क्रिएट योर फ्रीमियम इज, ऑफ कोर्स सबसे पहले, मतलब ये सब नहीं बनाना है, ऑफ कोर्स इनमें से कोई भी एक चीज आप पिक कर सकते हो. यू कैन पिक एनी वन थिंग आउट ऑफ ऑल ऑफ दीज. इट कुड बी वर्कशॉप. आप कोई वर्कशॉप होल्ड कर सकते हो, होस्ट कर सकते हो, कंसल्ट कर सकते हो लोगों से, ऑफर दे सकते हो उन्हें, कोई भी लो पेड ऑफर या कुछ भी प्रीमियम ऑफर, डिस्काउंट ऑफर कर सकते हो आप अपने प्रोडक्ट पे उन लोगों को लिए फॉर अ लिमिटेड पीरियड ऑफ टाइम. वीडियो लेसन ऑफर कर सकते हो कि दिस इज व्हाट आई टीच, दिस इज आई एम गिविंग अवे फॉर फ्री, ऐसे कुछ टेम्पलेट्स दे सकते हो किसी भी चीज को. फॉर एग्जांपल आप ग्राफिक डिजाइनर हो तो आप अपने कुछ टेम्पलेट्स थ्रू आउट कर सकते हैं. क्विज हो गया, पीडीएफ हैंडबुक हो गया, कोई कूपन हो गया, चैलेंज हो गया, गिव अवे हो गया, प्रोडक्ट सैंपल हो गया, टी शर्ट हो गया, हाउ टू गाइड हो गया, लाइव डेमो हो गया, टिकट्स हो गया, ओकेजनल ऑफर हो गया, लाइक कोई इंडिपेंडेंस डे है, कोई फेस्टिव है, कुछ है, तो ओकेजनली हमने ऑफर दे दिया. दैट्स हाउ पीपल डू. आपने देखा है कि दिवाली के टाइम में सबसे ज्यादा सेल लगती है, सबसे ज्यादा हाइप क्रिएट होती है. दैट्स हाउ दोज ब्रांड अट्रैक्ट कस्टमर्स. उनकी सबसे ज्यादा सेल उसी टाइम पे होती है. तो ओकेजनल हम ऑफर दे सकते हैं, वीडियो कोर्स वगैरह, ये सब चीजें हम प्रीमियम में दे सकते हैं. दीज आर दी ऑप्शंस. आप इनमें से कोई भी एक चीज पिक कर सकते हो बेस्ड ऑन योर ब्रांड एंड योर सर्विस, योर प्रोडक्ट, और उसके बेस पे आप इनमें से कोई भी एक चीज को पिक कर सकते हो. ओके. Now, no one will show interest until unless you offer something your audience need. Read this again. Write this in your notebook. नो वन विल शो इंटरेस्ट अंटिल, आप कितने ही ऑफर बना लो, आप कितने भी यू नो प्रोडक्ट और सर्विस बना लो, बट जब तक वो ऑडियंस की नीड से मैच नहीं होगा, पीपल विल नॉट गोइंग टू शो दी इंटरेस्ट. यू नीड टू नो कि क्या चीज मार्केट में ऑलरेडी चल रही है. यू नीड टू नो दिस. तभी मैंने बोला था स्टार्टिंग में कि जब हम नीश पे वर्क करोगे तो आप अपने 5-10 कॉम्पिटिटर्स को जाके देख लेना दैट व्हाट दे आर डूइंग. हमें उन्हें कॉपी नहीं करना है, बस वी नीड टू अंडरस्टैंड कि ऑडियंस की क्या नीड है और क्या चल रहा है मार्केट में. वी जस्ट नीड टू बी अपडेटेड. अपडेट होना बहुत कंपल्सरी है, आई विल से बहुत इंपॉर्टेंट है. ठीक है. ओके. सो नो वन विल शो इंटरेस्ट अंटिल अनलेस यू ऑफर समथिंग योर ऑडियंस नीड. आप कितने ही ऑफर बना लो, मैं ये बात अपने खुद के एक्सपीरियंस से बोल रही हूँ, 4 to 5 years बैक की बातें बता रही हूँ कि कोई इंटरेस्ट शो नहीं करेगा. आप कितने ही ऑफर बना लेना, कितने ही पोस्टर बना बना के लगा लेना अपने इंस्टाग्राम स्टोरी पे, कोई नहीं पूछेगा क्या है. ठीक है. So no one will show interest until unless you offer something your audience need. Now we will go ahead on the fourth step. हमने 3 steps के बारे में पीछे बात कर चुके हैं. Now we are here for the fourth step. Build sign up forms and create posters. Build a place where your audience can actually sign up without uneasy. So प्रीमियम बना लिया हमने, हमने कोई भी एक अपना ऑफर बना लिया है, हमने हमें आपका समझ आ गया कि अपनी ऑडियंस को कैसे अट्रैक्ट करना है. नाउ एट द फोर्थ स्टेप यू नीड टू अंडरस्टैंड कि वो लोग साइन अप कैसे करेंगे, आपके पास डेटा कैसे आएगा. और हमें भी तो, हम एज अ बिजनेस ओनर, आपको भी तो कोई ऐसी चीज होगी ना जो हाँ मुझे चाहिए ताकि आप अपने ऑडियंस को बाद में कांटेक्ट कर सको, है ना. सो फॉर दैट यू नीड टू क्रिएट साइन अप फॉर्म्स, जैसे गूगल फॉर्म्स होते हैं, ये सब होते हैं. और आइदर आप लैंडिंग पेजेस बना सकते हो. जो वेबसाइट पे लैंडिंग पेजेस बनता है, आपने कभी देखा होगा कि एड्स रन होती हैं, उसमें कॉल टू एक्शन में जब आप क्लिक करते हो तो एक वेबसाइट का पूरा पेज खुलता है. That is known as landing page. Okay. So build a place where your audience can actually sign up without uneasy. एक ऐसा प्लेस जहाँ पे वो लोग इजीली जाके साइन अप कर सके, उन्हें डिटेल्स भी मिल जाए थोड़े बहुत जो उन्हें चाहिए.
लाइक लैंडिंग पेजेस बनाया, गूगल फॉर्म्स बनाया, ये टाइप फॉर्म, जॉट फॉर्म जो ये सारे चलते हैं, ये सब बनाया। डीएम गिव अवे भी आप दे सकते हो कि आप हमारे डीएम पे आओ एंड यू कैन हैव दिस ऑफर। हाउ टू मेक गूगल फॉर्म्स, गूगल फॉर्म आप गूगल पे जाके सर्च करेंगे forms.google, एंड उस पे जाके आप कोई भी टेम्पलेट पिक कर सकते हो। देयर आर टू ऑप्शन, या तो आप कोई टेम्पलेट पिक कर सकते हो या फिर आप कोई भी ब्लैंक फॉर्म खोल के अपने क्वेश्चंस उसमें डाल के एंड सेंड कर सकते हो अपने ऑडियंस को। ओके, सो मतलब आप forms.google पे जाएंगे, सो यू विल एबल टू अंडरस्टैंड कि आपको कैसे बनाना है। ओके, लेट्स मूव अहेड। हमने फोर्थ स्टेप पे थोड़ा सा समझा। अब मैं इस फोर्थ स्टेप के लिए एक बोनस टिप दे रही हूँ, दैट इज स्टार्ट विद अ मिनिमल इन्फो। हमें, अब इसका क्या मतलब है मैं बताती हूँ। हमें ये नहीं करना कि अगर हम फॉर एग्जाम्पल आपका कोई गिव अवे है। अच्छा। ओके, तो दैट मीन आपका फॉर एग्जाम्पल कोई गिव अवे है, आपका कोई ऑफर है जो आप लॉन्च करने वाले हो ऑनलाइन, ठीक है। अब उसमें आपको चाहिए कि लोग आए और साइन अप करें। बट साइन अप इतना मुश्किल मत बना देना कि लोग 10 बार सोचे उस फॉर्म को भरने से पहले। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? टाइप पी इफ यू आर गेटिंग माई पॉइंट, व्हाट एम आई सेइंग। उस फॉर्म को हमें इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं बनाना है कि लोग उसको भरने से पहले ही 10 बार सोचे कि इतनी सारी इंफॉर्मेशन कौन मांगता है। सो अल्टीमेटली द गोल इज टू स्टार्ट विद मिनिमल इन्फो, कम से कम इन्फो हमें लेनी है। सो पीपल यूजुअली क्या करते हैं, बड़े बड़े ब्रांड्स यूजुअली क्या करते हैं, वो सिर्फ ईमेल आईडी और नेम मांगते हैं। मैक्स टू मैक्स अगर उन्हें कुछ पूछना है, व्हाट्सएप कांटेक्ट करना है, तो वो थर्ड चीज ऑप्शन मांगते हैं। अदरवाइज बेस्ट होता है कि यू आर आस्किंग फॉर द ईमेल एंड द नेम। ओके, let's go back. Last is fifth step. Target your potential customer with a low risk of premium offer. अब आ गई है, अब हमने बना दिया, हमने अपना फ्रीमियम बना दिया, हमने अपना फ्रीमियम का लैंडिंग पेज और गूगल फॉर्म बना दिया। नाउ वी आर कमिंग ऑन टू फिफ्थ स्टेप, जहां पे हमें उसको अपने कस्टमर तक पहुंचाना है। अब हमें उसको पहुंचाना भी तो पड़ेगा, कस्टमर तो खुद आएगा नहीं चल के। सो आई एम गिविंग यू लाइक 20 टिप्स कि कैसे आप उसको अपने कस्टमर तक पहुंचा सकते हैं। ओके, तो सबसे पहले द फर्स्ट थिंग यू नीड टू डू इज अंडरस्टैंड द राइट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म। फॉर द वेरी फर्स्ट थिंग यू नीड टू डू इज कि अपना सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म सही पिक होना चाहिए। जैसे हमने अभी बात करी कि आपकी ऑडियंस उस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे होनी चाहिए। इफ यू थिंक कि आपका जो इंस्टाग्राम है दैट इज बेस्ट फॉर योर ऑडियंस, आपके ऑडियंस उस पे है ही है, तो स्टार्ट विद दैट प्लेटफॉर्म। सो अंडरस्टैंड द राइट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, ऑप्टिमाइज इट थॉरली। ऑप्टिमाइज करना है उसको, मतलब कि अपने उस पेज को कुछ इस तरह से रिप्रेजेंट करना है कि वो एक ब्रांड पेज लगे। उसका प्रोफाइल फोटो हो गया, उसका बायो हो गया, बायो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, लोग ऐसे ही कुछ भी लिख देते हैं। बायो हो गया, लिंक इन बायो हो गया जिसपे वो जाएगा एक्चुअली में, ठीक है। आपका कंटेंट हो गया, आपके हाइलाइट्स हो गए, आपकी इंस्टाग्राम स्टोरीज हो गई। सो ऑप्टिमाइज इट थॉरोली। अंडरस्टैंड योर ऑडियंस, हमें अपनी ऑडियंस को समझना है कि हाँ हमारी ऑडियंस कैसी है और वो ये प्रोडक्ट लेंगे तो उन्हें क्या मिलेगा अल्टीमेटली, ठीक है। क्रिएट अ वैल्यूएबल प्रीमियम ऑफर। प्रीमियम ऑफर भी फ्री है, इसका मतलब ये नहीं कि आप ऐसे ही बना दोगे। इट शुड बी वैल्यूएबल, यू शुड गिवन अ लॉट ऑफ वैल्यू टू योर ऑडियंस। हाईलाइट द बेनिफिट्स, जब भी आप कोई प्रीमियम ऑफर बनाओ तो उसमें बेनिफिट्स हाईलाइट करो, 3 पॉइंट्स 4 पॉइंट्स की लोगों को क्या क्या बेनिफिट मिलेगा अगर वो ये प्रीमियम ऑफर में आते हैं। लो बैरियर टू एंट्री, लो बैरियर टू एंट्री का मतलब हो गया जब आप साइन अप फॉर्म्स बना रहे हैं तो उस पे बहुत सारा डिटेल्स नहीं मांगना है ऑडियंस से। ईमेल आईडी, नेम मैक्सिमम, और उससे ज्यादा एक आध चीज अगर आपको पूछनी है तो दैट इज चॉइस, बट ईमेल आईडी और नेम बेस्ट होता है, ठीक है। collect content information, ask users to sign up। अल्टीमेटली हम मैं वही बात करें कि अपने यूजर्स को बोले कि वो साइन अप करें, तब आपको वो चीज मिल जाएगी जो उन्हें चाहिए। अल्टीमेटली उन्हें वो प्रीमियम मिल जाएगा, वो ऑफर मिल जाएगा या वो कूपन मिल जाएगा, वो वीडियो लेसन जो भी आपने पिक करा होगा पीछे से। एंगेज विद ऑनबोर्डिंग, जितने भी लोगों ने साइन अप किया है एंगेज विद देम। डू नॉट लाइक कि हाँ साइन अप कर लिया, वीडियो लेसन दिया, छोड़ दो उसको। नो, एंगेज विद देम। नर्चर करो उनको, उनसे पूछो डू दे नीड एनीथिंग एल्स, ऑफर करो उनको अगर आप कुछ और कर सकते हैं तो।
ऑफर अपग्रेड इंसेंटिव्स, गैदर फीडबैक। फीडबैक जरूर लें कि उन्हें आपका प्रोडक्ट और सर्विस कैसा लगा, बिकॉज इट विल हेल्प यू कि हाँ आपका प्रोडक्ट सही भी जा रहा है या नहीं जा रहा। कॉल टू एक्शन हर एक जगह पे ऐड करो, अपनी रील्स डाल रहे हो उसमें कॉल टू एक्शन ऐड करो, स्टोरीज में डालो, हाईलाइट्स में डालो, कैराउसल्स में डालो, ठीक है, जो भी प्लेस है लिंक इन बायो में डालो, जितने भी प्लेस हैं अपना कॉल टू एक्शन हर एक जगह डालना है। वेबसाइट पे डालो, गूगल फॉर्म्स पे डालो, एवरी प्लेस, हर एक जगह पे आपको कॉल टू एक्शन जरूर बताना है। लोग क्या करते हैं, पोस्टर डाल देते हैं, उसके बाद बताते ही नहीं कि उसमें साइन अप कैसे करना है। मैंने बहुत सारे पेजेस में ऐसा देखा है। सो कॉल टू एक्शन आपको डालना है, भर भर के डालना है। अगर एक बार ऑडियंस कंफ्यूज हुई तो वो चली जाएगी। एक बार उसे कंफ्यूजन हुई ना, अरे यार मुझे नहीं समझ आ रहा कि कैसे साइन अप करना है, कैसे करना है, वो चला जाएगा। उस पर इतना टाइम है ही नहीं कि वो सुने आपकी बात, क्योंकि ऑलरेडी इतने मार्केटिंग लीडर्स बैठे हुए हैं हर एक इंडस्ट्री के। रन एड्स टू रीच थाउजेंड्स इन अ डे। आप एड्स रन कर सकते हो हजारों लोगों तक पहुंचने के लिए एक ही दिन में। जिस सो सो मैनी ब्रांड प्रोफेशनल्स, बड़े बड़े ब्रांड्स जो हैं वो करते हैं। पोस्ट स्टोरीज हो गया, अंडरस्टैंड मार्केटिंग कीवर्ड्स हो गया, डोंट जस्ट सेल ऑफर। हम बस यहाँ बेचने के लिए नहीं आए, वी आर ऑफरिंग आवर सर्विसेज, वी आर वैल्यूएबल ब्रांड जो सर्विस ऑफर करता है। वी आर नॉट जस्ट हियर की सेल सेल सेल, वी आर हियरिंग सेल सेलिंग सेलिंग, नो, वी आर ऑफरिंग, वी आर गिविंग वैल्यू, ठीक है, दैट्स व्हाई वी डिजर्व ऑल ऑफ दैट। build connections with your client, understand your idea, focus on headline। जब भी कोई poster and all बनाओ, so try to focus on that headline, because that is the first thing जो लोग उसको पढ़ के अट्रैक्ट होंगे, ठीक है। so ultimately हमारा जो गोल होता है वो होता है कि हमें हमारी ऑडियंस को अट्रैक्ट करना है, ना कि उनके पीछे 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 भागना है, कि उनको डीएम कर रहे हैं या फिर उनको यू नो हम स्टोरीज पे डाल रहे हैं फिर भी नहीं आ रहे हैं, हम उनको ट्राई कर रहे हैं कि कोई और वे से आ जाए। ये सब हमें नहीं करना है। अल्टीमेटली जो हमें करना है वो ये कि हमें उनको अट्रैक्ट करना है बाय ऑफरिंग देम राइट सर्विसेज, राइट प्रोडक्ट जो उन्हें चाहिए। सिंपल। इज दैट क्लियर? टाइप सी इन द चैट बॉक्स। ओके, अनुष्का, तनीषा, ओके, हीना, प्रीत, ओके, ओके, आशी, ओके, ओके। लेट्स मूव अहेड एंड अंडरस्टैंड कि एक फनल क्या होता है, ऑनलाइन मार्केटिंग का फनल क्या होता है। सबसे पहले फनल हमारे पास होता है कि हम अपनी ऑडियंस को अट्रैक्ट करना सीखें। उसके बाद हम उनको एजुकेट करें अपने फ्रीमियम ऑफर से, फिर हम उनको नर्चर करें, तब जाके वो हमारा क्लाइंट बनता है। अगर हमें लगता है कि ऐसे ही हम कुछ भी डाल देंगे तो अट्रैक्ट हो जाएगा, सो इट्स नॉट गोइंग टू वर्क। आयशा प्लीज आस्क योर क्वेश्चन। ठीक है, 33 लीड्स पर डे इस फनल से आएंगी। व्हाट अबाउट अनफॉलो? दैट्स अ वेरी वर्स्ट स्ट्रेटेजी। आप लोगों को डीएम कर रहे हो कि प्लीज फॉलो दिस, नथिंग, क्लाइंट नहीं आएगा उससे। आई एम सेइंग इट अगेन, क्लाइंट विल नॉट कम इन सारी चीजों से। क्लाइंट जब आएगा जब उसका इंटरेस्ट होगा। आपको अपने ऑडियंस के इंटरेस्ट को पिक करना है। सो डू नॉट फॉलो ऑल दीज फॉलो एंड फॉलो स्ट्रैटेजी। अच्छा चलो आप बताओ, फॉलो एंड फॉलो स्ट्रैटेजी से आपको अब तक कोई ऐसा रिजल्ट मिला है? डू यू able to generate any kind of result with this strategy? Okay, so some follower हैं हुए ही, बट ओके आई एम नॉट एबल टू अंडरस्टैंड कि आपने क्या लिखा है। बट सब फॉलो और अनफॉलो कब तक करते रहोगे? कितने अकाउंट्स के पास जाओगे, कितने अकाउंट्स को बोलोगे कि आपको फॉलो करे, डीएम करे? कोई फेक आईडी है, कोई छोड़ गया, कोई आपका अनफॉलो कर गया बाद में, कैसे ये चीज करोगे? इससे आपकी जो ब्रांड पर्सनालिटी है, ब्रांड इमेज है, ब्रांड विजिबिलिटी है, वो खराब होती है। ऑनलाइन में ऐसी चीजें करने से हमारी जो ब्रांड विजिबिलिटी है वो चीज खराब होती है। हाउ टू प्रोवाइड वैल्यू ऑफ डिजिटल कोर्सेज, how to provide value of digital courses, what do you mean by that, Daljit? Okay, let's move ahead. I am talking about free tools which you can use to generate leads. I'm talking about there are 16 tools, free tools जो आप यूज कर सकते हैं लीड्स को जनरेट करने के लिए। ये सारी चीजें यूज होती हैं इन सारे स्टेप्स में। कैनवा है, गूगल फॉर्म्स है,
गूगल ट्रेंड्स है, इनशॉट है, कैपकट है। ओके, मैं बता देती हूँ कौन कौन चीज किस चीज के लिए। कैनवा फॉर ग्राफिक डिजाइनिंग, गूगल फॉर्म्स लीड जनरेशन के लिए, फॉर्म बनाने के लिए। गूगल ट्रेंड्स पे आप जाके चेक कर सकते हो कि कौन सी चीज ट्रेंड में है, मार्केट में क्या चल रहा है, अपने नीश को सर्च करके। इन शॉर्ट से आप वीडियो एडिट कर सकते हो, कैपकट से आप वीडियो एडिट कर सकते हो, मेलचिम्प से आप लैंडिंग पेजेस बना सकते हो या ईमेल मार्केटिंग सर्विसेज दे सकते हो। लूम, बफर, फेसबुक बिजनेस स्वीट से ऑफ कोर्स आप एड्स एंड ऑल का मैनेज कर सकते हो, कंटेंट कैलेंडर बना सकते हो। गूगल एनालिटिक्स, आंसर द पब्लिक से आप देख सकते हो कि आपकी पब्लिक आपकी ओके वेट अ मिनट, आपकी पब्लिक की क्या डिमांड है, वो क्या किस तरह के क्वेश्चन ऑनलाइन मार्केट में पूछ रहे हैं। एक्सिली से आप अपना सेल कर सकते हो सर्विसेज को। नोशन से आप अपना कंटेंट कैलेंडर प्लान कर सकते हो। चैट जीपीटी से आप कोई भी क्वेश्चन का आंसर निकाल सकते हो। रिमूव डॉट बीजी से किसी भी चीज का बैकग्राउंड इरेज कर सकते हो, आइदर इट्स वीडियो और इट्स फोटोज। एंड एनीमेकर से आप किसी भी तरह की एनिमेशन वीडियोस बना सकते हो। So I think somebody has raised their hand. Please use the chat box to ask anything. So ultimately, the goal is more lead generation is equals to more visits, and more visits is equals to more sales. So ultimately, that is the thing. जितनी lead generation होगी, उतने ही ज्यादा लोग अल्टीमेटली। मैंने एक एग्जांपल दिया, अगर कोई ऑफलाइन शॉप है, अगर हमने बैनर लगाया है, वो 1000 लोगों ने देखा है, तब जाके 100 लोग उस दुकान पर आएंगे। 100 लोग आएंगे तभी हम बोल सकते हैं कि हाँ 10 लोग, अब हम सोच सकते हैं कि वो लोग बाय करेंगे या उनको वो चीजें जो फिट हो रही है जो हमारा प्रोडक्ट का सर्विसेज है। So more lead generation is equals to more visit and is equals to more sales. So nobody will tell you कि ये सब चीजें करो, ये सारे स्टेप्स लो। कोई भी ब्रांड आके आपको नहीं बोलेगा कि ये सारे स्टेप्स लीजिए। कौन आके बताएगा? कौन आपको अपना कंपटीशन बनाएगा? Nobody will come to tell you कि ऐसे 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 हम करते हैं, ये हमारा प्रोफेशनल स्टेप है। बट अल्टीमेटली अगर आप किसी भी ब्रांड में जाके देखोगे और ध्यान से समझोगे, उसको स्टडी करोगे, तो सबका फनल यही मिलता है। ओके, हाउ टू यूज गूगल ट्रेंड्स। गूगल ट्रेंड्स में वेट अ मिनट, हाउ टू यूज गूगल ट्रेंड्स। गूगल ट्रेंड्स में हमें ये पता चल जाता है, एक्सप्लोर ऊपर लिखा आता है, आप उस पे अपना टॉपिक सर्च कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल आपका टॉपिक है फैशन ब्लॉगिंग या फैशन कोचिंग, ठीक है, तो आप उस पे फैशन कोचिंग डाल के आप सर्च कर सकते हो कि किस किस कंट्री में इस पर्टिकुलर चीज का डिमांड है। उस अकॉर्डिंग आप अपने प्रोफाइल पे उस चीज को डाल सकते हैं। सो दैट्स हाउ, मतलब अल्टीमेटली आपको डेटा मिल जाएगा, एक बंच ऑफ डेटा मिल जाएगा कि मेरी ऑडियंस, हमें अपनी ऑडियंस के बारे में जितना पता हो सकता है उतना पता होना चाहिए। ठीक है, सो गूगल ट्रेंड्स को आप ऐसे यूज कर सकते हो, कोई भी टॉपिक डाल के आप चेक कर सकते हो कि उसकी डिमांड कितनी चल रही है, कौन कौन से ईयर्स में उसकी डिमांड चलती है, कौन कौन सी कंट्रीज में वो ज्यादा है, कैसे कैसे क्वेश्चंस की डिमांड एक्चुअली में मार्केट में है। सो इज हैशटैग इम्पॉर्टेंट? So yeah, hashtag is important, but I will not say कि only hashtag is important. अगर आप hashtag डालते हो so it's good. अगर आप देख के समझ के डाल रहे हो, अपने कीवर्ड्स के साथ डाल रहे हो, बिकॉज इंस्टाग्राम भी अब एक सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन बन रहा है और बनने वाला है। सो हैशटैग अगर हम कीवर्ड्स के अकॉर्डिंग डालते हैं तो इट्स गुड फॉर यू। व्हाट इज अ फनल? फनल, ओके, व्हाट इज अ फनल? फनल ये होता है, फॉर एग्जाम्पल कोई भी एक काइंड ऑफ, मैं कैसे बताऊं, बहुत, मैं एक एग्जांपल से आपको बताती हूँ। किसी भी शॉप है, कोई भी शॉप है, कोई भी ऑनलाइन शॉप है, उस पे सबसे पहले 1000 लोग आ रहे हैं, ठीक है, उसके बाद 100 लोग आ रहे हैं, मतलब विजिट 100 लोग कर रहे हैं, 100 लोगों को उस ब्रांड के बारे में पता है, फिर 100 लोगों को पता चला, फिर जाके कन्वर्जन हुआ। तो जो ये एक सीरीज बनती है, जो ये स्टेप्स बनते हैं, this is what we called funnel, this is people called sales funnel, this is what we called online marketing funnels. Okay, recently got to know that hashtags are a strategy of the past and have no effect. Is it true? It has a effect. जो पहले इफेक्ट होता था वो वाला इफेक्ट खत्म हो गया है। अब जो इफेक्ट है वो ये है कि आप लोग अपना अगर कीवर्ड्स के हिसाब से डालोगे, हर एक चीज को सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन के हिसाब से डालोगे कि क्या कीवर्ड इंस्टाग्राम पे वर्क कर रहा है इस नीश के लिए, उस हिसाब से डालोगे तो इट विल वर्क अल्टीमेटली।
Yes, keywords are more important due to advanced optimization and algorithms. Yes. Okay. So I think Q&A में कोई भी क्वेश्चन है so chat box यूज करो और पूछ लेना. I hope I have cleared all the questions. Type C in the chat box अगर सारे क्वेश्चंस का आंसर डिलीवर्ड हो चुका है. See, done. Let's move ahead और हम फटाफट से अपनी इस प्रेजेंटेशन को आगे बढ़ाते हैं. Okay, clear. Thank you so much. That's so good. Okay, great. Okay, so right now, how is this session going actually? अब हम आगे बढ़ रहे हैं, हम आगे और चीजें भी सीखेंगे. Is this session is helpful? How is this session going for you all? For all the 20 participants here. Okay, Tanisha is saying good, amazing session, very helpful, wonderful. Okay, so far good. Okay, Ash. Okay, thank you everyone. Let's move ahead. Wonderful session. Okay, so I hope you all guys learned something new from this session. Type new or N if you guys learned something new from this session. Okay, Tanisha, I have a question. Yes, please ask. New. मैम इन गूगल ट्रेंड्स समटाइम्स कुछ वर्ड्स डालते हैं तो आता नहीं है, ऐसा क्यों? क्योंकि मे बी हो सकता है कि वो चीज एक्चुअली में ट्रेंडिंग में ना हो, या फिर डिपेंड करता है कि आप क्या डाल रहे हो, क्या वो चीज एक्चुअली में ट्रेंडिंग में चल रही है या फिर नहीं चल रही है. आपने ओके, क्या डाल के देखा था, आप बता सकते हो? लाइक ट्रिप, मेक माई ट्रिप के ऊपर डाला था कि सो मे बी ऐसा ही हो सकता है कि वो चीज ट्रेंडिंग में नहीं चल रही हो, अभी न्यूज में मार्केट में नहीं चल रहा होता है, तो ऐसा होता है. मेरे साथ भी हुआ था. मैंने कुछ कीवर्ड सर्च किए थे बट वो उसका नहीं आया था, बट उसका रीजन मुझे यही पता चला कि वो चीज अभी करंट मार्केट में इतना एक्टिव नहीं है, इतना नहीं चल रहा है, उसके ऊपर अभी कोई डेटा अवेलेबल नहीं है एट दिस मोमेंट, जिसकी वजह से ये सब होता है. So when will ओके. this workshop get over? So it will be over at sharp 8:30. So we have 20 minutes left. Okay, let's move ahead. Okay, mistakes you need to avoid while launching your product or services. पोजीशनिंग हम कुछ भी पोस्ट कर देते हैं बिना क्लियर कंटेंट स्ट्रैटेजी के, और लॉन्चिंग विदाउट हैविंग अ क्लियर प्री लॉन्च स्ट्रैटेजी. जब तक हमारे पास क्लियर मार्केटिंग स्ट्रैटेजी नहीं होती, हम फिर भी चीजों को लॉन्च कर देते हैं, मार्केट में बता देते हैं, फिर लीड्स नहीं आती हैं, फिर हम उसके बाद वही बर्नआउट वाले फेज में चले जाते हैं. तो अब हमें नहीं करना है, अब हमने कुछ नया सीख लिया है, तो अब हमें वो इम्प्लीमेंट करना है. ठीक है. सो अल्टीमेटली इस पूरे सेशन में हमने एक जो मेन चीज सीखी है, व्हाट दैट इज, डोंट रन आफ्टर योर क्लाइंट, क्रिएट अ सिस्टम टू अट्रैक्ट क्लाइंट्स. डोंट रन आफ्टर योर क्लाइंट. हमें क्लाइंट्स के पीछे नहीं जाना है, हमें उन्हें डीएम नहीं करना है, हमें उन्हें बार बार जा जाके वो नहीं करना है. हमें एक सिस्टम क्रिएट करना है, एक ऑटोमेटिक सिस्टम, जिससे हमारे पास क्लाइंट्स खुद आए, वो लोग खुद साइन अप के लिए बोले, वो लोग खुद चाहें कि हाँ उन्हें आपका वर्कशॉप, वेबिनार, वीडियो लेसन, प्रोडक्ट, सर्विस, वो चीजें लेनी है.